Good morning, students. In the last lecture, we are discussing the general problems in agriculture sectors, which is we are watching all over the India. First problem, that is the decrease the size of land because farmers divided their families. So families are divided, at the same time the land is also divided for that family. So therefore the first problem is increasing, that is decreasing the size of land. Okay. Second problem, when we are heard again and again, that is so many farmers are small numbers of land available, and so many farmers are working for the other field. Okay, means other firms they are working. So therefore small and marginal farmers are more available in our country. That is the second one problems. Third one, the farmers are using chemical fertilizers because so many farmers are not the proper knowledge about the how to use the chemical, how to use the natural fertilizers. So they are using chemical fertilizers which is very harmful for the land. So sometimes they are using pesticides more. It is created the problems of soil degradations, means the bacteria are influence on the land. Okay. And sometimes the plants are not properly growing, so therefore the lands soils are demolish their fertility. Okay. Fourth problem is agriculture indebtedness. Sometimes commercial banks are not providing proper loan. The RBI is given instructions to each and every banks to provide proper loan for agriculture sectors, but when we are watching to the commercial bank, they are not provided the proper agriculture's loan, because farmers are not repaying the loan proper time. Sometimes farmers are facing more debtness when they are taken again and again loan. So these are the problems created by debtness. Okay. Next problem is land reform. Sometimes what happened that the British government, still from British government, are making so many laws for Indian farmers. So many laws created for improving the situations of farmers, but Indian farmers, whatever the land reform is happening in India, that is not moving by year to year. It is only understand when the it is only implement when the Britishers are here. Okay, afterwards it is not implemented. So therefore this is the problems of land reform. And second problem is crop pattern. Sometimes what, when we are doing the farming, at that time it is important to take an alternative crops. Okay, means first time you are, if you are given the bananas, fruits, agricultures, second time you have to put it down in just like food grains. Okay, but Indian farmers are using same land for same crops, so therefore it's created a problems. Next one, our all lands are dry land because we are came to drought prone zone area. So dry lands problems are occur in our country. Also irrigation facilities are not proper. The dams water is specially using for rural and urban areas, especially for livelihood. Okay, but it is not used for agriculture sectors, so it is created the irrigation facilities problem. Next problem is lack of capital. The Indian farmers is facing the second next problem is lack of capital. The we are also heard before it that they are the commercial bank is not provide the proper loan, so therefore farmers are facing capitals problem. Also investors are not interested to invest in agriculture sectors because it is not given the more profits, so therefore the capital problem is facing by agriculture sectors. Okay. Next one is rural development plan. So many governments are doing so many rural development plans, but the collectors, the tahsildar, or the nearby officers are not properly implement that plan, so it is created the agriculture sector's problem. Next one is lack of marketing facilities. It is also one of the greatest problem in our country.
the farmers is solding and purchasing their agriculture related products in the APMC market or where the products are, but APMC markets are too much less in our country. Okay, in whole country there are 20 to 25 APMC market, sometimes 2 to 3 district only one APMC market, so it's created the marketing facilities problem. Okay, next one is adverse climate conditions in our country. The rainfall is very uncertain, it's came anytime. So when the farmers is taking crops, it's created the problems to the climate changes. Sometimes heavy rainfall is created the problems for crops. Sometimes the uncertain rainfall is created the problems of so these are agriculture sectors related problems we are heard in last lectures. Now we are concentrate what are the measures government taken from 2017 to 16. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि हमारे फार्मर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स है. अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या किया है. ओके, तो यहाँ पे जो 2017 और 2018 का स्ट्रक्चर दिया है, मतलब मोदी जो गवर्नमेंट है उनके लास्ट ईयर तक, यानी मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद इकोनॉमिक सेक्टर्स के लिए क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. फर्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट. पहला फ़ायदा ये किया कि सारे फार्मर्स को अच्छे क्वालिटी के बीज या सीड्स देना स्टार्ट किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके. ओके, और वो भी रीज़नेबल यानी कम से कम रेट में. कम से कम रेट में फार्मर्स क्या करेंगे, अच्छे से क्वालिटी के सीड्स खरीदेंगे तो उससे वो अच्छे से क्रॉप्स ले सकते हैं और अच्छे से फसल ले सकते हैं. इसलिए उनको हर एक फार्मर्स को बहुत सारा सीड्स डिस्ट्रीब्यूशंस किया गया एज अ फेवरेबल रेट में. ओके, सेकेंड, इंक्रीज नंबर्स ऑफ आउटलेट टू द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करके नेचुरली बनने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल बढ़ाना स्टार्ट किया है. अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो सूखा कचरा अलग निकालते हैं, गीला कचरा अलग निकालते हैं, तो ये दोनों कचरे को जमा कर कर उससे फर्टिलाइज़र बना के वो फर्टिलाइज़र्स फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं. तो ये एक टाइप से आउटलेट है. फार्मर्स अभी हेल्दी फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करने लगे, जिसको हम लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र्स कहते हैं, या आप लोगों को मालूम होगा उसके लिए क्या वर्ड है. तो ऐसे फर्टिलाइज़र्स लोगों ने इस्तेमाल करना भी स्टार्ट किया है. नेक्स्ट है, पेस्टिसाइड भी दे रहे हैं. गवर्नमेंट खुद पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं ताकि फार्मर्स अपने फसल को अच्छी तरह से संभाल के उगा सके और पंछी वो फसल ज़्यादा ना खाए. ओके, या उस फसल पे बैक्टीरिया ना बैठे. तो बैक्टीरिया ना बैठने की वजह से क्रॉप्स का पैटर्न बढ़ गया है, क्रॉप्स की फर्टिलाइज़र पावर बढ़ गई है. तो ये दूसरा फ़ायदा गवर्नमेंट ने करना स्टार्ट किया है. तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. ओके, बहुत सारे डैम गवर्नमेंट ने बनाए, जैसे हीराकुंड है, भाखरा नांगल नाम का डैम है, जायकवाड़ी डैम है. इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी डैम अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में है, जिससे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है. इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से बढ़ रही है. और इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द इंडिया सभी जगह पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाना स्टार्ट किया है. ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुएँ बनाए जा रहे हैं, वेल्स बनाए जा रहे हैं, कैनल ओपन करके दिए जा रहे हैं ताकि फार्मर्स को खेती के लिए पानी या वाटर्स अवेलेबल हो सके. थर्ड फ़ायदा है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पम्प्स एफर्ट टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड. अभी देखो इंडिया में अभी एक सिर्फ कहा जाता है कि एक स्टेट बच गया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है. तो पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है. तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जिससे फार्मर्स एग्रीकल्चर पंप चला सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं ज़मीन के अंदर से. ओके, और जो फार्मर्स डिमांड करेगा उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम चालू है. उनको रीज़नेबल रेट में या फेवरेबल रेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि फार्मर्स के पंप 24 घंटे चल सके और फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स या फसल ले सके.
नेक्स्ट फ़ायदा है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कमर्शियल बैंक अगर फार्मर्स को प्रॉपरली लोन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट बैंक्स कंपलसरी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेगी। फार्मर्स किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी लोन्स ले सकता है, उनके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, तो वो लोग ब्याज भी ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए तो बहुत सारी स्कीम अवेलेबल है जिसमें महाराष्ट्रियन फार्मर्स उनको खुद फाइनेंशियल असिस्टेंस कर सकते हैं। जैसे अगर उनको गाय भैंस लेनी है तो वो लेने के लिए 40,000 रुपये तक का लोन अवेलेबल करके दिया जाता है, 50,000 तक का। उसमें से सिर्फ 20% लोन रिटर्न करना है, बाकी वो फार्मर्स इस्तेमाल कर सकता है। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ओके, अगर फार्मर्स ने रिक्वेस्ट की तो। ज़्यादा से ज़्यादा APMC मार्केट बनाना स्टार्ट हुआ है। APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप खरीद बेच सकते हो, सेल्स या परचेस कर सकते हो, ये भी इंडिया में बनाना स्टार्ट हो गया है। हर एक जगह पर APMC मार्केट है, ओके। एग्रो एक्सपोर्ट जोन है, हर एक जगह पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स का एक एक ऑफिस बना के रखा है कि वहाँ पे जाकर आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी तरफ से वहाँ पे क्लाइंट्स अवेलेबल है जो जाके आपके प्रोडक्ट्स को फॉरेन में बेच सकते हैं, ओके। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको फूलों की खेती कैसे की जाती है ये सिखाया जाएगा, ओके। ग्रेडिंग्स करने वाली मशीनरी अवेलेबल है। ग्रेडिंग यानी हर एक क्रॉप्स को पीसना, ताकि आप डायरेक्टली गेहूँ, चावल या कुछ भी उनका आटा निकाल कर आप डायरेक्टली मार्केट में बेच सकते हो, आपको पैकिंग करके। तो ये भी सिस्टम महाराष्ट्र में स्टार्ट है, ओके। और इन सब के लिए लगने वाला लोन, इस सब के लिए लगने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करके देती है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सीड्स अवेलेबल, 7 नंबर का पॉइंट पहले सीखेंगे, फिर एक बार बताता हूँ। यहाँ की फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर ऐप बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर चैनल्स अवेलेबल है, जैसे किसान नाम का चैनल है, DD किसान। ऐप्स अवेलेबल है किसान के लिए, ओके, हर एक लैंग्वेज में। तो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशंस या अवेयरनेस करना स्टार्ट हुआ है। और एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारे फार्मर्स, उसी के साथ यंग जनरेशन भी अभी एग्रीकल्चर्स में जाना स्टार्ट हुई है। कोरोना के पीरियड में या ये हमारे लास्ट ईयर 1 साल में बहुत सारे बच्चों ने खेतों में काम किया है। बहुत सारे बच्चों को अभी खेतों के काम भी मालूम हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर्स की एक तरह से डेवलपमेंट हो गई है और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर्स ने हमको बचा के रखा है, ये भी हमें याद रखना है, ओके। सो वन मोर टाइम वी आर वॉचिंग व्हाट आर द हैपन्स। फर्स्ट वन, अच्छे क्वालिटी के सीड्स यानी बीज फ्री में लोगों को अवेलेबल करके दिए जा रहे हैं। चांगल्या क्वालिटीचे बी बियाणं आपल्याला दिले जात आहेत। दूसरा, अच्छे नॅचरल फर्टिलायझर्स अवेलेबल करके दिए जा रहे हैं, जिला आपण सेंद्रिय खतं म्हणतो, ते अवेलेबल करून देत आहेत आपल्याला। और पेस्टिसाइड्स यानी बैक्टीरिया मारने की दवा, जिनको हम लोग कीटकनाशक कहते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो चुकी है। बहुत सारे डैम्स ओपन करके रखे हैं, बहुत सारी रिवर्स का पानी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी परमिशन दी गई है। अगर किसी फार्मर्स ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ मांगी तो उसको वेल, कुएँ, कैनल बनाने के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंशियल असिस्टेंस किया जाता है, मदद की जाती है। ये फैसिलिटीज़ ओपन हो चुकी है। चौथा ये है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। आपको एग्रीकल्चर्स के पंप चलाने के लिए, यानी खेतों में पानी लाने के लिए जो पंप लगते हैं वो चलाने के लिए एग्रीकल्चर्स इलेक्ट्रिफिकेशंस करके दिया है। अगर कोई फार्मर्स डिमांड कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करके देना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, अगर कोई फाइनेंशियल मदद मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, तो उसको पैसा या फाइनेंशियल असिस्टेंस करना स्टार्ट हुआ है। APMC मार्केट ओपन करके दिए हर एक जगह पर, जहाँ पे जाकर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। कल्याण में भी APMC मार्केट है अभी, ओके, जहाँ पे आप अपनी सब्जियाँ, फल, फूल, फ्रूट्स बेच सकते हो। अगर आपको कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा है अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स या परचेस कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट जोन्स अवेलेबल है हर एक स्टेट में। अगर महाराष्ट्र में देखोगे तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स है,
जहाँ पे जाकर आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स है जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि फलों की खेती कैसे की जाएगी। ग्रेडिंग सेंटर्स अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने फसल्स या आपने जो प्रोडक्शंस क्रॉप्स लिए उनको आप उसका आटा बना सकते हो, उसको पैकिंग कर सकते हो और पैकिंग करके डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दी है। और लास्ट, एग्रीकल्चर्स का इम्पोर्टेंस बताने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए बहुत सारे किसान या डीडी किसान नाम के चैनल्स अवेलेबल है, ऐप्स अवेलेबल है, जिससे फार्मर्स देख सकता है कि उसको खेती कैसे करनी है, खेती में किसका चीज़ का इस्तेमाल करना है। मास मीडिया से एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। आप ये भी याद रखना है कि एग्रीकल्चर्स ये आज के ज़माने में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसा माना जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग।